Hello guys, my name is CS Shalaka Sharma and I am a company secretary, and today I am recording a video on the CS executive subject of EBCL, that is Economic, Business and Commercial Laws. And I am starting here with chapter number 1, that is the Reserve Bank of India Act. This chapter is specifically targeted at knowing why we need to learn this Reserve Bank of India system, or why as a company secretary we need to have knowledge about the banking system in India. Banking system in India is of rather not just India, in any country, or the banking system itself has to be understood at a length and is to be understood very with very basic concepts. So it is of utmost importance that we, especially us who are going to be professionals in the finance sector of India, us who are going to be professionals in the compliance sector of India, we should have sufficient and competitive knowledge about how the banking system in India works. So let us start with this this enactment called the Reserve Bank of India Act. ओके, तो आगे बढ़ने से पहले, थियोरी स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि क्या है ये बैंक, क्या होता है बैंकिंग सिस्टम, क्या होता है और हमें क्यों ज़रूरी है ये समझना, या हमारा पैसा बैंक में रखते हैं तो एग्जैक्टली बैंक क्या करती है। इसका ना एक छोटा सा पार्ट हमने CS फाउंडेशन में, विच वाज अर्स्ट वाइल द फाउंडेशन, उसके इकोनॉमिक सब्जेक्ट में पढ़ा था। द चैप्टर नेम वाज मनी एंड बैंकिंग, एंड उस चैप्टर में देर वर टू कंसेप्ट्स। द कंसेप्ट्स वेर सेंट्रल बैंक इन इंडिया एंड कमर्शियल बैंक इन इंडिया। एंड फॉलोइंग दैट कंसेप्ट हमने ये भी देखा था कि what are the functions of the central bank and what are the functions of the commercial bank. So एक बार समझ लेते हैं, आगे थियोरी टेक्निकलिटीज पे जाने से पहले एक बार ये समझते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में या एज एन इंडिविजुअल बैंक का और मेरा रिश्ता कैसा रहेगा. सो लेट अस सी. Let's say I have 1 lakh rupees with me. I am possessing 1 lakh rupees. I go and put that in my cupboard. When I put that in my cupboard, I lock the cupboard. I keep it there for 6 months or 1 year, as the time frame, as the case may be. I keep it there for quite some duration. Now in such a case, what happens? After 6 months or after 1 year, I go and open that drawer. I see in my drawer 1 lakh rupees. कुछ इंक्रीज हुआ? नहीं हुआ. कुछ डिक्रीज हुआ? नहीं हुआ. मुझे कुछ लॉस हुआ? नहीं हुआ. मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ. अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ. मैंने 1 लाख रुपया उस बैंक कबर्ड में रखा था. 1 लाख रुपया अभी भी है. However, there was one risk, that was of theft and burglary. That risk accompanied all this while. Let us come back to the 1 lakh rupees. अब क्या हुआ? ये 1 लाख रुपीस मैंने मैंने कबर्ड में रखे, और ये 1 लाख रुपीस जब मैंने अपना कबर्ड ओपन किया, ड्रॉवर ओपन किया, तब उसमें 1 लाख ही थे. मेरे साथ साथ इस 1 लाख से किसी और को फायदा हुआ? नहीं हुआ. This amount was safe and sound in my cupboard. However, in that case, I did not earn a profit on this amount. I did not incur any loss on this amount. So, why can I not keep, or why is the banking system recommended? I can also keep the amount in my cupboard as well. So, why is it recommended to keep this amount in bank? लॉस तो मुझे घर पे पैसा रख के भी नहीं हुआ. सो ये बैंकिंग सिस्टम का रिकमेंडेशन क्यों है? ओके, नाउ लेट्स से आई गो एंड आई कीप दिस 1 लाख रुपीज इन अ बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में रखने पर क्या होगा? बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा. साथ ही साथ बैंक मुझे इंटरेस्ट देने के साथ साथ मेरे 1 लाख रुपीज अपने पास घर में कबर्ड में रखेगा क्या? नहीं.
बैंक डज नॉट वर्क दैट वे। बैंक क्या करेगा, मैंने जो 1 लाख रुपीस दिए हुए हैं उसका एक सेकेंड डिपॉजिट अकाउंट क्रिएट करेगा। सेकेंड डिपॉजिट अकाउंट मतलब first it will keep some reserves for safety as a requirement with the RBI, and the remaining amount it will pass on to some borrower in the form of a loan deposit. Okay, लेट्स से मैंने 1 लाख रुपया बैंक में रखा और वो 1 लाख में से 20,000 बैंक ने आरबीआई के पास रिजर्व रिक्वायरमेंट बोल के रख दिया, बचा कितना 80,000। ये 80,000 रुपीज जो अभी बैंक के पास है वो बैंक ने किसी और को लोन दिया। सो लेट्स से बैंक ने जो 80,000 पे लोन दिया है उस पे एग्जाम्पल लेते हैं 11% से बैंक ने रिटर्न किया तो बैंक को मिला 11%। एग्जाम्पल लेते हैं बैंक ने मुझे 8% पे मेरा 1 लाख रुपया रिटर्न कर दिया, या मैंने जो 1 लाख रुपया रखा था बैंक के पास उस पे 8% का ब्याज दर दिया, उस पर 8% इंटरेस्ट दिया। बैंक के पास आया 11%, बैंक ने मुझे दिया 8%, बैंक के पास बचा कितना 11 माइनस 8 दैट इज 3%। ये जो 3% है ये हुआ बैंक का प्रॉफिट। ये बैंक का प्रॉफिट है विच इज द मोटिव फॉर द बैंक टू वर्क इन दिस सिनेरियो। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बैंकिंग सिस्टम, नॉट the way RBI works, we will get to that, but I'm talking about the banking system in general. तो क्या हुआ ऐसे में, बैंक ने मुझे 8% के हिसाब से दिया, मुझे 8% के हिसाब से कितना मिला उसके ऊपर 1 lakh was my principal amount and I got a profit of 8,000. So after 1 year when I withdrew my money back, मेरे पास 1 लाख ही था क्या, जैसा कबर्ड के केस में मैंने कबर्ड खोला तो उसमें 1 लाख रुपया ही था, वैसा अभी मेरे पास 1 लाख था क्या, नो, आई हैव 1,08,000 which was a profit for the investor, that is the public, that is the depositor. So इसमें बेनिफिट क्या हुआ, सबसे पहला इन्वेस्टर का बेनिफिट हुआ। दूसरी चीज क्या हुई, दूसरी चीज सिस्टम में वो पैसा सर्क्यूलेट हुआ, which means the same 1 lakh rupees was enjoyed by me in the way of profit by the borrower for his capital requirement, right? So had I kept this 1 lakh in the cupboard it would be safe and sound, but it was leaking or it was away from the banking system, from the money circulation system, which means it was practically of no circulation, मतलब उससे किसी को कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। दैट इज द रीजन बैंकिंग सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये बैंकिंग सिस्टम के वजह से लोगों को प्रोत्साहन दिया गया, उन्हें एनकरेज किया गया कि आप क्या करो, आप ये पैसा घर से बाहर निकालो, बैंक्स में जाके इन्वेस्ट करो। ये पैसा जब बैंक्स में जाके इन्वेस्ट होने लगा तो द सेम मनी वाज सर्क्यूलेटेड टू अदर बोरोवर्स एज वेल, सो द मनी सर्क्यूलेशन आल्सो इंक्रीज्ड। अब अगर हम हमारा पैसा किसी बैंक में रख रहे हैं, अगर हम हमारा पैसा किसी और को सौंप रहे हैं और को दे रहे हैं, सो देयर शुड बी सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस विथ विच even the investor as well as the bank is bound to comply and bound to obey. ये दोनों चीजें होने के वजह से कोई deregulated system, deregulated means some system which is free from controls, कोई डीरेगुलेटेड सिस्टम पे पब्लिक को उतना भरोसा नहीं कर पा रही थी। दैट इज द रीजन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विथ एन एक्ट कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड अस as finance personnel, as finance compliance officers are supposed to learn what exactly is the Reserve Bank of India, so that we can also guide others as to how the banking system is efficient in its nature.
The Reserve Bank of India Act 1934. The origin of the Reserve Bank of India can be traced back to 1926 when the Royal Commission on Indian Currency and Finance, also known as Hilton-Young Commission, recommended the creation of a central bank for India to separate the control of currency and credit from the government and to augment banking facilities throughout the country. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करनी है, इसका ओरिजिन या ऐसा कोई एक बैंक आएगा, इसका ओरिजिन, इसका उगम, इस आइडिया का बर्थ का अंदाजा अनुमान हम लोग कब से लगा सकते हैं? 1926 से। 1926 में क्या हुआ था? रॉयल कमीशन था, उसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, उसने क्या किया? उस कमीशन के ऑफिसर्स ने रेकमेंड किया, सजेस्ट किया कि अब क्या क्रिएट करना चाहिए इंडिया के लिए? सेंट्रल बैंक क्रिएट करना चाहिए। सेंट्रल मतलब एक ऐसा बैंक जो बाकी पूरी सिस्टम को सेंट्रलाइज तरह से एक जगह से एक पोजीशन से कंट्रोल कर सके। और इससे क्या होगा? ये सेंट्रल बैंक क्रिएट करने से क्या होगा? करेंसी का कंट्रोल, क्रेडिट का कंट्रोल सेपरेट होगा। किससे सेपरेट होगा? गवर्नमेंट से। भैया एक गवर्नमेंट सारे काम कर सकती है क्या? सारे काम वो एक गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, इसलिए उसने क्या करना चाहिए? कुछ और ऑफिसर्स का, कुछ और अथॉरिटीज का, कुछ और डिग्निटरीज का ग्रुप बना के एक रिजर्व बैंक या रादर एक सेंट्रल बैंक बनाना सजेस्ट किया है। किसके लिए बनाना है? ये इंडियन टेरिटरी के लिए, इंडिया के लिए, जिससे क्या होगा? बैंकिंग फैसिलिटीज प्रॉपरली ऑगमेंट हो सकती है। ऑगमेंट का मतलब ना इंक्रीज होता है, तो कोई चीज बढ़ जाना उसे ऑगमेंट कहा जाता है। तो बैंकिंग फैसिलिटीज सब लोगों तक पहुंचाई जा सके, उसमें इंक्रीज हो, ये चीजों के लिए क्या करो आप? उस बैंकिंग फैसिलिटी या उस बैंकिंग सिस्टम को अलग कर दो। किससे अलग करें? उसको सरकार से अलग कर दो। सरकार के पास तो वैसे भी काम है अपने करने के लिए, तो एक अलग ही बैंक बना दो जो सेंट्रल बैंक रहेगा और वो क्या देखेगा? करेंसी और क्रेडिट के काम देखेगा। ये करेंसी और क्रेडिट के काम पहले जो सरकार देखती थी, पहले जो गवर्नमेंट देखती थी, अब गवर्नमेंट के ऊपर से थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। गवर्नमेंट के ऊपर से जब थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा तो जो सेंट्रल बैंक इस काम के लिए स्पेसिफिकली बनाया जा रहा है वो उन फैसिलिटीज पे और फोकस कर सकता है। The Reserve Bank of India Act 1934 established the Reserve Bank and set in motion a series of actions culminating in the start of operations in 1935. कल्मिनेटिंग का मतलब होता है रिजल्टिंग, जिसका आउटपुट रिजल्ट क्या आ रहा है। ओके, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ये ध्यान से समझना, एक्ट कायदा जो 1934 में बना था, उस कायदे के तहत ये रिजर्व बैंक बना है। देखो, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कायदे के तहत बनता है तो हम जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कहा जाता है, राइट? द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपनी लॉ, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड रजिस्टर्ड कंपनी। तो ये जो रिजर्व बैंक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट ने बनाए हुए एक्ट, कायदा, स्टैट्यूट के तहत बनाया गया है, तो ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हुआ। And set in motion a series of actions culminating in the start of operations in 1935. Set in motion मतलब एक मार्ग पे लगाना, एक तरीके से चालू करना, ठीक है, जिससे क्या रिजल्ट हुआ? प्रॉपर ऑपरेशंस, फंक्शनिंग्स चालू हो गए। कब से चालू हुए? 1935 से। सो 1926 में जो रॉयल कमीशन था उसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। इस कमीशन ने कहा कि इंडिया के लिए एक सेंट्रल बैंक होना जरूरी है, सेंट्रल बैंक सेट करना या सेंट्रल बैंक स्टार्ट करना जरूरी है। ये सेंट्रल बैंक स्टार्ट हुआ तो उससे क्या होगा? उससे करेंसी और क्रेडिट का जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट के परव्यू से हटके उस सेंट्रल बैंक के पास इंडिपेंडेंटली जाएगा और उस वजह से
गवर्नमेंट भी दूसरे चीजों पे फोकस कर सकती है और सेंट्रल बैंक बैंकिंग सिस्टम के इंक्रीज करने पर, बैंकिंग फैसिलिटीज अच्छे से अच्छे हो, इसके ऊपर फोकस कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो अच्छा है, ये करते हैं। ये करने के लिए उन्होंने कायदा बनाया। इस कायदे के तहत आरबीआई नाम का एक और कॉरपोरेशन बनाया। Since then, RBI's role and functions have gone numerous changes as the nature of Indian economy and financial sectors uh, changed. तो जो जैसे जैसे इंडियन सोसाइटी में जैसे जैसे इंडियन सोसाइटी में किसी प्रकार का चेंज होते आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी में चेंजेस होते आ रहे हैं, वो इंडियन इकोनॉमी के जो चेंजेस है वो चेंजेस को ध्यान में रखते हुए या वो चेंजेस के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी जो रोल है, जो उसके फंक्शंस है, जो उसकी ड्यूटीज है, वो भी चेंज होते जा रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। स्टार्टिंग एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक, द रिजर्व बैंक was nationalized in 1949. It then assumed the responsibility to meet the aspirations of a newly independent country and its people. सबसे पहले 1934 में जब ये बैंक क्रिएट हुआ था ना, तब वो बैंक ना प्राइवेट था, शेयर होल्डर्स उसके प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे। लेकिन फिर क्या हुआ, 1949 में ये प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया और उसे कहा जाता है नेशनलाइजेशन। नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करने के बाद क्या हो गया ना, अब अगर वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक ही रहता तो शायद प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता। अब ऐसा नहीं है, अब वो पीपल सेंट्रिक हो गया है। पीपल सेंट्रिक मतलब उसका उद्देश्य अच्छे से अच्छी फैसिलिटी देना रहेगा, उसका उद्देश्य अच्छे से अच्छे सर्विसेज देना रहेगा, और उस कंट्री के जो बैंकिंग सिस्टम से एस्पिरेशंस है, इच्छाएं है, अपेक्षाएं है, उम्मीदें है, उसे पूरा करने की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व बैंक पे है। कब से है? 1949 से। आपने कहीं सुना होगा 1949 में एक और कायदा सरकार ने बनाया था। उस कायदे का नाम है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। ये कायदा क्या करता है, बैंकिंग के सारे प्रोसीजर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। और ये कायदे के स्थापना होते ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी, जो उसके पहले प्राइवेट बैंक था, अब उसे क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया। गवर्नमेंट ने अपने परव्यू में, अपने कंट्रोल में ले लिया। The Reserve Bank's nationalization aimed at achieving coordination between policies of government and those of the central bank. Central bank के जो policies थे उसमें गवर्नमेंट ने अपने कुछ पॉलिसीज डिसाइड किए। ये पॉलिसीज को स्ट्रीमलाइन किया गया। स्ट्रीमलाइन करना मतलब एक साथ लाना, उसको यूनिफॉर्म रखना, और फिर वो यूनिफॉर्म पॉलिसीज हो, इसके लिए रिजर्व बैंक को नेशनलाइज किया गया। The preamble to the Reserve Bank of India Act 1934, under which it constituted, specifies its objectives as, देखो, preamble का मतलब होता है उद्देश्य। कोई भी कायदा जब हम बनाते हैं ना, या सॉरी हम नहीं, आई मीन कोई भी कायदा सरकार जब बनाती है तब उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, और वो उद्देश्य वो क्या करती है, आपने कोई कायदा पढ़ते वक्त बेयर एक्ट में देखा होगा, सबसे ऊपर उस कायदे का नाम होता है और उसके बाद आइटैलिक्स में कुछ चीजें लिखी हुई होती है, स्लैंट में एक ब्रैकेट में कुछ चीजें लिखी होती है। जब ये चीजें बताती है कि उस कायदे के बनाने के पीछे, निर्माण करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था, वो कायदा बनाने का उद्देश्य क्या था, उसे प्रियम्बल कहा जाता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का प्रियम्बल क्या था? To regulate the issue of banknotes and keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system to its advantage. देखो हाँ, let us see. To regulate the issue of banknotes, जो बैंक नोट्स है उसको इश्यू करने से रिलेटेड रेगुलेशंस बनाना, ये हो गया उसका पहला उद्देश्य। दूसरा,
keeping of reserves with a way to securing money stability in India. दूसरा, reserves जो है पैसे के साठा पुरौठा, उसे मनी स्टेबिलिटी मतलब कल जाके वो पैसा लग सकता है इस इरादे से उस रिजर्व्स को सेफगार्ड करना। एंड तीसरा, करेंसी और क्रेडिट सिस्टम ऑपरेट करना, किसके लिए ऑपरेट करना, ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, उसके भले के लिए, किसके भले के लिए, देश के भले के लिए। कौन से देश के भले के लिए, इंडिया के भले के लिए, इंडिया के बेटरमेंट के लिए करेंसी सिस्टम मैनेज करना, क्रेडिट सिस्टम मैनेज करना। ये हो गया उसका थर्ड ऑब्जेक्टिव। ये तीन प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स है। किसके है ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स? ये ऑब्जेक्टिव्स है आरबीआई एक्ट के, ऐसा उस इनैक्टमेंट ने खुद ने कहा है। ये तीन उद्देश्य पूरे करने के लिए, ये तीन ऑब्जेक्टिव्स एम्स अचीव करने के लिए आगे वो कायदा बनाया हुआ है। The objectives outlined in the preamble hold good, as evident from the multifaceted functions that the Reserve Bank performs today. Its roles and priorities have changed in tandem with national priorities and global developments. मतलब जो मल्टीफेसेटेड मतलब एक से ज्यादा मल्टीपल फंक्शंस रिजर्व बैंक परफॉर्म करता है ना, और उसका जो रोल्स एंड प्रायोरिटीज है वो इंडिया की प्रायोरिटीज, नेशन की प्रायोरिटीज एंड बाकी कंट्रीज के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए डेवलप करने का जो उसका प्रायोरिटी है, उसमें जैसे जैसे बदलाव आते गए हैं वैसे वैसे इसके आरबीआई के जो फंक्शंस है वो भी चेंज हो रहे हैं, वो भी बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। इसलिए जो ऑब्जेक्टिव्स उसके अंदर बताए गए हैं, कहाँ हमने ऊपर पढ़े प्रियम्बल में, ये जो ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं ये ऑब्जेक्टिव्स एकदम सही है और इन्हें अचीव करने के लिए ही आरबीआई का इनैक्टमेंट हुआ है। Essentially, the Reserve Bank has demonstrated dynamism and flexibility to meet requirements of an evolving economy. Dynamism का मतलब होता है ever changing, जो चीज वक्त के साथ साथ और जरूरत के साथ साथ चेंज होती है, जो चीज रिजिड नहीं है, जिसमें बदलाव आना संभव है, उसे डायनामिज्म कहा जाता है। तो रिजर्व बैंक के जो फंक्शंस है वो डायनामिक फंक्शंस है। जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप हो रही है वैसे वैसे रिजर्व बैंक के ऑफिसर्स या रिजर्व बैंक के जो फंक्शंस है वो भी चेंज होते जा रहे हैं। A core function of the Reserve Bank in the past years has been formulation and implementation of monetary policy with the object of maintaining price stability and ensuring adequate flow of credit to productive sectors of the economy. कोर मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे डीप में जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो फंक्शन क्या था आरबीआई का इन द पास्ट ईयर्स? क्या था वो? कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। मतलब आरबीआई का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। क्या चीजों को ध्यान में रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाना है? प्राइस स्टेबिलिटी, एकदम प्राइस बढ़ रहा है, एकदम से प्राइस घट रहा है, ऐसा ना हो और प्राइस स्टेबल रहे, ये एक उद्देश्य था उसके मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के पीछे। और दूसरा, फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो प्रोडक्शन सेक्टर है, उन्हें क्रेडिट मतलब उधारी पे पैसा मिले और उनका काम ना रुके। ये दो चीजें थी, जो दो चीजों के साथ आरबीआई का सबसे महत्व का काम चल रहा था, जिसका नाम था मॉनेटरी पॉलिसी क्रिएट करना। इसमें और क्या क्या ऐड हुआ? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने का भी काम ऐड हुआ। To these was added in more recent times the goal of financial stability. अब सुनो, सबसे पहले पास्ट ईयर्स में शुरुआत हुई थी प्राइस स्टेबिलिटी, फ्लो ऑफ क्रेडिट से लेके मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की, और जैसे जैसे साल बढ़ते गए, वक्त आगे बढ़ता गया,
वैसे वैसे ये महसूस हुआ कि इसी मॉनेटरी पॉलिसी में हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी मुद्दा डालना चाहिए, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए. The objective of maintaining financial stability has spanned its role from external account management to oversight of banks and non-banking financial institutions, as also of money, government securities and foreign exchange market. जो उद्देश्य है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने का, वो उद्देश्य और बदलता गया. उद्देश्य बदलता गया, उस उद्देश्य में जो कामकाज आरबीआई कर रहा था वो बदलता गया, और उसके लिए उसमें और जो चेंजेस हो रहे थे वो चेंजेस थे एक्सटर्नल अकाउंट मैनेज करना. एक्सटर्नल अकाउंट्स मैनेज करना, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स क्या है, गवर्नमेंट्स जो सिक्योरिटीज में डील करता है, ट्रेड करता है, वो क्या है, एंड दूसरी कंट्रीज के साथ जो करेंसी एक्सचेंज हो रहा है वो क्या है. ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया वैसे वैसे चेंजेस आते गए, वैसे वैसे ये मॉनेटरी पॉलिसी डेवलप होते गई. The Reserve Bank designs and implements the regulatory framework for banking and non-banking financial institutions with the aim of providing people access to banking system, protecting depositors' interest and maintaining overall health of the financial system. ये पैराग्राफ को हम बेनिफिट्स ऑफ रिजर्व बैंक ये भी बोल सकते हैं, राइट. ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि रिजर्व बैंक होने का बेनिफिट क्या है. रिजर्व बैंक क्या करता है, एक रेगुलेटरी पॉलिसी बनाता है. रेगुलेटरी पॉलिसी मतलब एक ऐसा पॉलिसी जो कि इंस्टीट्यूशंस जो होता है ना, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, मतलब बैंकिंग बैंक्स एज वेल एज वो कंपनीज जो लेंडिंग बोरोइंग का बिजनेस करती है लेकिन बैंक्स नहीं होती है, ऐसी कंपनीज, ऐसे इंस्टीट्यूशंस लोगों को बैंकिंग सिस्टम में एक्सेस दे रहे हैं. एक्सेस दे रहे हैं मतलब लोग ट्रांजैक्शंस बैंक्स के साथ कर पा रहे हैं. तो सबसे पहला है लोगों को बैंकिंग सिस्टम का एक्सेस देना. ये पहला इस पॉलिसी का उद्देश्य है, बेनिफिट है. दूसरा, जो लोगों ने पैसे डिपॉजिट किए हैं वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. और तीसरा, ओवरऑल हेल्थ. ओवरऑल हेल्थ मतलब सेफ होना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक का भरोसा रहे जहां वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं तब वो भरोसा होना चाहिए. ये सब चीजें मेंटेन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बनाता है, रेगुलेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क. रेगुलेटरी मींस कंसर्निंग लॉज, दैट इज लीगल पॉलिसी बनाता है. Its function of regulating the commercial banking sector, which emerged with the enactment of Banking Regulation Act 1949, has over the time expanded to cover other entities. वक्त के साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, देखो मैंने आप लोगों को 2 स्लाइड्स पहले भी बताया था, जो फंक्शन है इट्स फंक्शन, इट्स मतलब किसका फंक्शन, आरबीआई का फंक्शन. आरबीआई के फंक्शंस किसके वजह से इमर्ज हुए हैं, चालू हुए, 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का इनैक्टमेंट की वजह से. याद करो 1949 में और क्या हुआ था, यस 1949 में नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई हुआ था. उसके पहले कैसा था आरबीआई, प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक. 1949 में ये एक्ट के साथ साथ आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था उसमें आरबीआई के जो फंक्शंस थे वो इस रेगुलेशंस के हिसाब से बदलते गए, प्लस वो सारे फंक्शंस और चेंज होते गए, वो एक्सपेंशन होता गया जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, जैसे जैसे वक्त आगे बीतता गया, जैसे जैसे इकोनॉमिक इवोल्यूशंस होते गए, डेवलपमेंट्स होते गए. Thus, Amendment to Banking Regulation Act 1949 brought cooperative banks and regional rural banks under RBI's jurisdiction. जो cooperative banks होते हैं और जो regional rural banks हैं वो भी अब किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, रिजर्व बैंक को. While amendments to the Reserve Bank saw development finance institutions, non-banking financial companies and primary dealers coming under its regulation.
development finance institutions, non-banking financial companies that is NBFCs and primary dealers, ये भी अब किसको रिपोर्टिंग करते हैं? अंडर इट्स रेगुलेशन. इट्स मतलब हुज? आरबीआईज रेगुलेशन. आरबीआई के परव्यू में पहले सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी था, फिर नेशनलाइजेशन हुआ, फिर डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, पीपल्स एक्सेस, ओवरऑल हेल्थ ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ये सब आ गया. फिर उसके बाद में कोऑपरेटिव बैंक्स भी आरबीआई के कंट्रोल में है, रीजनल रूरल बैंक्स भी आरबीआई के कंट्रोल में है, डीएफआई दैट इज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी आरबीआई के कंट्रोल में है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये भी इनके कामकाज के लिए भी आरबीआई ही रूल्स बताता है या बनाता है. एंड प्राइमरी डीलर्स आर दोज हु आर ऑथोराइज्ड टू deal in government securities and sell them to the public, to the purchasers. वो primary dealers होते हैं. 19 पहले primary dealers were not under the purview or under the control of RBI. However, now they are under the control or under the purview of RBI under the regulations made by the Reserve Bank of India. As these entities became important players in financial systems and markets, जैसे जैसे इनका भी इम्पोर्टेंस बढ़ता गया, या जैसे जैसे इम्पोर्टेंस बढ़ता गया मतलब इनका भी रोल जो कामकाज है वो बढ़ता गया, आरबीआई को जरूरत महसूस हुई कि हमें सबके लिए क्या करना है, सेंट्रलाइज्ड एंड प्रॉपर लॉज बनाने हैं. Similarly, global economic uncertainties during and after Second World War warranted conservation of scarce foreign exchange reserves by sovereign intervention and allocation. अनसर्टेनिटी मतलब कंटेंजेंसीज, तो ग्लोबली दूसरी कंट्रीज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद में वारंटेड मतलब जरूरत, नीड, क्या चीज की जरूरत थी, कंजर्वेशन, कोई चीज को संभालना, क्या चीज को संभालना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को संभालने की जरूरत थी. बाय whom was it required? By some sovereign intervention. sovereign का मतलब होता है सुप्रीम, सर्वोच्च, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है. तो इंडिया में किसके पास बैंकिंग से रिलेटेड या मनी मैटर्स से रिलेटेड सबसे ज्यादा पावर्स है? सेंट्रल बैंक के पास. तो सेंट्रल बैंक इंटरवीन करना जरूरी था. इंटरवीन मींस इंटरफियर. सेंट्रल बैंक का इंटरफियरेंस जरूरी था. किस चीज के लिए जरूरी था? फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करने के लिए जरूरी था. Initially, the Reserve Bank carried out a regulation of foreign exchange transactions under the Defense of India Rules 1939 and later under the Foreign Exchange Regulation Act 1947. 1939 के तहत कौन से रूल्स थे? डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स. वो बाद में चेंज हुए और कौन से रूल्स बनाए गए? फेरा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के रूल्स बनाए गए. ये कायदा आरबीआई को पावर देता है कि फॉरेन एक्सचेंज दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रांजैक्शंस कैसे एंटर करे, कैसे कैरी आउट करे. Over the years, as the economy matured, the role shifted from foreign exchange regulation to foreign exchange management. Foreign exchange के लिए laws बनाने से अब foreign exchange को क्या करना जरूरी था? मैनेज करना जरूरी था. इकोनॉमी matured मतलब as the economy grows, इकोनॉमी की जैसे जैसे ग्रोथ हुई है वैसे रेगुलेशन से ज्यादा जरूरत अब किस चीज में है? मैनेजमेंट में है. Post-independence, as the emerging nation tried to meet the aspirations of a large and diversified populace, the Reserve Bank, with its experience and expertise, was entrusted with a variety of developmental roles, particularly in the field of credit delivery. Post-independence मतलब कब? 1947 के बाद. Emerging nation को क्या क्या, इमर्जिंग नेशन मतलब अब इंडिया इमर्ज हो रहा है ना, अब इंडिया उभरने वाला है, अब इंडिया वापस अपने पैरों पे खड़े हो रहा है, लेकिन लार्ज और डाइवर्सिफाइड. डाइवर्सिफाइड मतलब विभिन्न, अलग अलग पॉपुलेशन को लेके आगे बढ़ना है. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ड्यूटीज है वो और बढ़ गए, क्योंकि उसे उसके 1947 के काफी पहले से एक्सपीरियंस भी था, एंड क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास
क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम का पूरा मैनेजमेंट इंटरेस्ट पहले से ही किया गया था, तो उसके पास उस फील्ड में एक्सपर्टीज भी था। तो और डेवलपमेंट के एंगल से भी और रोल्स करने कहा गया था, लेकिन मेजर फोकस उसका किस चीज पे था? क्रेडिट डिलीवरी। With the onset of economic planning in 1950 to 51, the Reserve Bank undertook a variety of developmental functions to encourage savings and capital formation and widen and deepen the agricultural and industrial credit setup. याद है 1950-51 में क्या हुआ था? In case you remember, 26 March 1950 में कुछ सेटअप हुआ था, दैट वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था। और अब इंडिया ने डेवलपमेंट की ओर बढ़ने के लिए, ग्रोथ की ओर बढ़ने के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाना चालू किया था। तो 12 5 ईयर प्लान्स बनाए थे 1950 से लेके 12th 5 ईयर के प्लान के बाद अब नीति आयोग सेटअप हुआ है। ये सारी चीजें आपके फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ी होगी। सो इकोनॉमिक प्लानिंग का दौर जब चालू हुआ 1950 में, तभी भी आरबीआई के डेवलपमेंट से रिलेटेड फंक्शंस बढ़ते गए और उसका फोकस और क्या चीज पे हुआ? सेविंग्स बढ़ाना, कैपिटल फॉर्मेशन पैसा जमा करना, पैसा बनाना, और एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग करना और इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना, जिसके लिए क्रेडिट पॉलिसीज, ताकि उन्हें उधार मिल सके और वो अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सके। Institution building was a significant aspect of its role in the 60s and 70s. 60s and 70s means the 1960s and 1970s. Okay. The strategy for nearly 4 decades placed emphasis on state-induced or state-supported developmental efforts. 4 decades का मतलब था लगभग 40 साल तक स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट की क्या थी? स्टेट सपोर्टेड, दैट इज गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ ही डेवलपमेंट हो पा रहा था। Subsequently, role of financial sector and financial markets was also given an explicit recognition in the development strategy. Explicit मतलब expressly, recognition मतलब पहचान। फाइनेंशियल सेक्टर को भी बढ़ावा दिया गया, फाइनेंशियल मार्केट्स को भी बढ़ावा दिया गया, डीलिंग्स एंड ट्रेडिंग्स को भी बढ़ावा दिया गया। The aftermath of 1991 balance of payments and foreign exchange crisis saw a paradigm shift in India's economic and financial policies. Paradigm मतलब बहुत बड़े पैमाने पे। The approach under the reform era included a thrust towards liberalization, privatization, globalization. कोई भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, कोई भी कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, उसे ये पता है 1991 आया तो आपको क्या याद रखना है? एलपीजी याद होगा। दैट वाज द 8th 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान्स में बताया गया था 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और ये सब चीजें किस पे फोकस की गई थी? एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। The Reserve Bank adopted international best practices in areas such as prudential regulation, banking technology, monetary policy instruments, external sector management, and currency management to make the new policy framework. Best practices अपने तरीके, तौर तरीके और बदले गए और इम्प्रूव किए गए। क्यों इम्प्रूव किए गए? क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया बना रहा था उसे बेस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, बेस्ट मैनेजेबल बनाने के लिए। The rapid pace of growth achieved by the financial system in deregulated regime necessitated a deepening and widening of access to banking services. जैसे जैसे ग्रोथ की स्पीड बढ़ती गई, वैसे वैसे ये जो deregulated regime था ना, deregulated means something that was free from control, उसको भी बहुत ज्यादा बैंकिंग सिस्टम पर निर्भर होने की जरूरत महसूस हुई। The new millennium has seen RBI play an active role in balancing the relationship between banks, customers, focusing on financial inclusion,
setting up administrative machinery to handle customer grievances, pursuing clean note policy, and ensuring development and oversight of secure and robust payment and settlement systems. ये चीजें क्या है? ये चीजें है क्या क्या बेटरमेंट्स आरबीआई ने की है। आरबीआई के रेगुलेटेड फॉर्म होने की वजह से, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से जो बैंक्स और कस्टमर्स के बीच में भरोसा बढ़ता गया, फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग होते गए, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मतलब ऑफिसर्स प्रॉपर, उतने अथॉरिटीज होना जो क्या कर रहे थे, कस्टमर ग्रीवेंसेस, कस्टमर्स को जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो हैंडल करने में जुट गए थे, वो हैंडल करने में बिजी हो गए थे, वो हैंडलिंग इम्प्रूव हो गया था। और पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम रोबस्ट, रोबस्ट होना मतलब एकदम तेजी से, एकदम फास्ट सुपरसोनिक स्पीड में चालू हो गया था। The last 2.5 decades have also seen growing integration of national economy and financial system with the globalizing world. अब हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन डेवलपमेंट या सिर्फ इंडिया के अंदर का डेवलपमेंट ही नहीं, इंडिया बाकी के कंट्रीज के साथ कंधे से कंधा मिला के डेवलपमेंट पे भी फुल्ली फोकस्ड है। ये कब से होने लगा है? लगभग पिछले 25 सालों से। With rising global integration, India has its advantages in terms of expanding scope and scale of growth of the Indian economy. It also exposes India to global shocks. जैसे जैसे कुछ अच्छी बातें हैं वैसे वैसे कुछ बुरी बातें भी है। मतलब जब हम कोई बड़े पैमाने पे काम करें तो उसमें रिस्क्स भी रहेंगे, तो एडवांटेजेस तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसे डिसहार्टनिंग या कुछ डिस्करेजिंग इवेंट्स भी हो सकते हैं। Hence, maintaining financial stability became an important mandate. Mandate मतलब ड्यूटी, उसका काम। सब में हर प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन टाइम एंड अगेन आरबीआई को एक चीज पे फोकस करना हमेशा जरूरी रहता है, वो होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। This in turn has brought the need for effective coordination and consultation with other regulators within the country. सिर्फ आरबीआई इंडिपेंडेंटली ये काम कर सकता है क्या? नहीं। आरबीआई इज दैट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट which is in consultation with other regulators, time and again bringing in new measurements, new regulations which are necessary for effective compliance, for effective growth and for effective achievement of its policies within the country and also outside the country. ओके सो हमने अभी तक देखा क्यों आरबीआई जरूरी था, आरबीआई के क्या क्या बेनिफिट्स थे, आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस थे, राइट हमने अभी तक एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि आरबीआई एग्जैक्टली होता क्या है, रिजर्व बैंकिंग सिस्टम एग्जैक्टली है क्या, और उससे इंडियन कंट्री को बेनिफिट कैसे हुआ। अब हम देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो मैंने आपको बताया था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, इस कॉर्पोरेशन का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है मतलब आपको ये बात सबसे पहले समझनी है कि एक एक्ट है, एक कायदा है। उस कायदे के सेक्शन नंबर 3 में कहा था दैट एक बैंक बनाया जाएगा, द बैंक टू बी कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया shall be constituted for purpose of taking over management of the currency from the central government। पहले करेंसी के इश्यूज कौन हैंडल करता था? सीजी हैंडल करता था। 1934 के बाद कौन हैंडल करने लगा है? आरबीआई। आरबीआई कॉर्पोरेशन किसने बनाया? गवर्नमेंट ने ही बनाया है, पार्लियामेंट ने ही बनाया है। एंड ऑफ कैरिंग on the business of banking in accordance with the provisions of the act। इस कायदे ने जो उद्देश्य बताए हुए हैं, जो हम प्रियम्बल में पढ़ चुके हैं 4-5 स्लाइड्स पहले। प्रियम्बल में हमने क्या क्या देखे थे प्रोविजंस ऑफ द एक्ट? हमने देखा था मॉनेटरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखा था, डेवलपमेंट देखा था। ये जो हम पहले प्रोविजंस के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो देख रहे थे, उस हिसाब से ही बैंकिंग का बिजनेस करने के लिए आरबीआई बनाया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछता है दैट व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ आरबीआई, तो पहला आप बताओगे कि मैनेजमेंट ऑफ करेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट से
टेक ओवर करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया था, और दूसरा बैंकिंग बिजनेस आरबीआई एक्ट के हिसाब से होने के लिए। Subsection 2 of this Act provides that the bank shall be a body corporate by the name of a Reserve Bank of India having perpetual succession and a common seal, and shall by the said name sue and be sued. Body corporate means as good as a company. एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगा, जिसे खुद का नाम रहेगा, उसके खुद के मेंबर्स रहेंगे, उसका खुद का कैपिटल रहेगा, परपेचुअल सक्सेशन रहेगा, उसके किसी मेंबर के डेथ के वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स नहीं होगा। कॉमन सील, उसका अपना सिग्नेचर रहेगा, उसकी अपनी पहचान रहेगी, एंड उस नाम से वो केस फाइल भी कर सकता है और उसके ऊपर कोई केस भी फाइल कर सकता है। तो वो सारे फीचर्स जो एक कॉर्पोरेट एंटिटी के हैं, जो एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो सारे फीचर्स रिजर्व बैंक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के भी रहेंगे। So this was the video on introduction of Reserve Bank of India and establishment and incorporation of Reserve Bank of India. If you have any doubts regarding this part, I'll be glad to answer the same. I'll be glad to clear out the same. And if you have liked this video, please like and comment on the video. And we will meet in the second part. Thank you. हमने इंट्रोडक्शन देखा आरबीआई का, फिर हमने इनकॉर्पोरेशन कैसे हुआ था आरबीआई का वो देखा। अब एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट मतलब हायरार्की, फिर डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉयज, अथॉरिटीज कौन से है, ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई में पहला सबसे उच्च ऑर्गेनाइजेशनल कैडर डेजिग्नेशन जो है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज एट द टॉप ऑफ द आरबीआईज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सॉवरेन एंटिटी, मेरे कहने का मतलब है जो सबसे बड़े बिग बॉस होते हैं ना, वो कौन है आरबीआई में? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स appointed by the government under the provisions of RBI 1934 Act, and the central board has the primary authority and responsibility for oversight of Reserve Bank. कौन अपॉइंट करता है इन ऑफिसर्स को, इन डायरेक्टर्स को? गवर्नमेंट। और किसके तहत अपॉइंट करता है? एक्ट के तहत अपॉइंट करता है। तो इनके क्या ड्यूटीज होते हैं? इनकी रिजर्व बैंक के कामों पे सबसे पहली अथॉरिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आरबीआई के जो भी फंक्शंस है वो फंक्शंस प्रॉपरली ड्यूली कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये देखना। इट डेलीगेट्स स्पेसिफिक फंक्शंस टू द लोकल बोर्ड्स एंड वेरियस कमिटीज। जो दूसरे लोकल बोर्ड्स है, जो रीजनल बोर्ड्स है, उनके क्या क्या फंक्शंस है ये उन्हें डेलीगेट करता है। टू डेलीगेट समथिंग मीन्स टू पास ऑन, आगे पास करना वो चीज, मतलब आगे देना किसी को वो काम। गवर्नर इज द रिजर्व बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव। कौन है रिजर्व बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव? गवर्नर। गवर्नर सुपरवाइजेस एंड डायरेक्ट्स द अफेयर्स एंड बिजनेस ऑफ आरबीआई। द मैनेजमेंट टीम ऑल्सो इंक्लूड्स डेप्यूटी गवर्नर्स एंड एग्जीक्यूटिव गवर्नर्स। फिर से देखते हैं, जो सेंट्रल सीबीडी है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो सर्वोच्च पोजीशन है रिजर्व बैंक के स्ट्रक्चर में। गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करता है और आरबीआई एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से इनका अपॉइंटमेंट होता है। फर्दर क्या क्या काम करने हैं वो लोकल बोर्ड्स को आगे ये सीबीडी पास ऑन करती है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो है गवर्नर। गवर्नर सारे आरबीआई के कामकाज क्या है वो सुपरवाइज करता है, और गवर्नर के टीम में, मैनेजमेंट टीम में डेप्यूटी गवर्नर्स एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं। Central government nominates 14 directors on the central board, including one director each from the local boards. Central government कितने डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करते हैं? 14 डायरेक्टर्स। हर लोकल बोर्ड से एक एक डायरेक्टर तो आना ही चाहिए। ये हो गए 4, बाकी के 10 डायरेक्टर्स। Other 10 directors represent different sectors such as agriculture, industry, trade and other professions. तो 4 कहाँ से होते हैं? लोकल बोर्ड से। 10 कहाँ से होते हैं? अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से।
ऑल दिस अपॉइंटमेंट्स आर मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, और हर CBD के हर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कितने साल का? 4 साल. Government also nominates one government official as a director representing the government, who is usually the finance secretary to the government of India and remains on the board during the pleasure of central government. गवर्नमेंट क्या करता है? एक गवर्नमेंट के ही ऑफिसर को, जनरली वो कौन होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी, उसको क्या किया जाता है? डायरेक्टर बोल के अपॉइंट किया जाता है. मतलब इन फोर में एक फाइनेंस सेक्रेटरी भी होता है, और इसका अपॉइंटमेंट ना 4 साल नहीं है, इसका अपॉइंटमेंट प्लेजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तब तक होता है. ये किस चीज के लिए? वो सुपरवाइजरी फंक्शन बोल के अपॉइंट किया जाता है. Governor and deputy governor devote their whole time to the affairs of the bank, receive such salaries and allowances as may be determined by central board with the approval of the central government. जो गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर है, उनका होल टाइम ड्यूटी रहेगा कि बैंक के ही कामकाज देखने हैं, और उनकी जो सैलरी आती है वो सेंट्रल बोर्ड डिटरमाइन करता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल पे होता है. The deputy governor and the director nominated may attend any meeting of the central board and take part in its deliberations, but shall not be entitled to vote. मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वोट करने का पावर डेप्यूटी गवर्नर एंड डायरेक्टर को नहीं है. However, when the governor is for any reason unable to attend any such meeting, a deputy governor authorized by him in this behalf in writing may vote for him at that meeting. जहां गवर्नर अटेंड नहीं कर पा रहा है एंड डेप्यूटी गवर्नर अगर प्रॉक्सी फॉर्म में ये मीटिंग अटेंड कर रहा है, प्रॉक्सी फॉर्म मतलब ऑल्टरनेटिव फॉर्म में, ऐसे टाइम पे अगर गवर्नर ने रिटन अथॉरिटी दी हुई है तो डेप्यूटी गवर्नर उसके बिहाफ पे वोट कर सकता है. गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर hold the office for such term not exceeding 5 years, as the central government may fix when appointing them, and they are eligible for reappointment. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने डायरेक्टर्स है? 14 डायरेक्टर्स, उनके टेन्योर 4 साल. गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर के टेन्योर 5 साल, नॉट एक्सीडिंग मतलब ज्यादा में ज्यादा 5 साल, जिनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, लेकिन कितने साल? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट के टाइम पे फिक्स करेगा कि भैया द अपॉइंटमेंट इज 4 years, 5 years, but it cannot be more than 5 years or 6 years, or any number or any duration more than that. A director nominated holds the office for a period of 4 years and thereafter until his successor is nominated. एक डायरेक्टर 4 साल तक रहेगा, अपॉइंटेड रहेगा, उसका टेन्योर 4 years का है, एंड जब तक सक्सेसर मतलब उसके बाद वाला पर्सन जब तक अपॉइंट नहीं हो जाता है तब तक उसे वो ऑफिस होल्ड करना पड़ेगा. No act or proceeding of the board can be questioned on the ground merely of the existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the board. मतलब अगर बोर्ड में एक डायरेक्टर कम है, कोई वेकेंसी है या डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनके जो कामकाज है उस पर सवाल, मतलब उन्होंने जो काम किया है वो काम अपने आप से इनवैलिड नहीं हो जाएगा. रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर रीनॉमिनेशन. नॉमिनेशन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसी पर्सन को दोबारा से नॉमिनेट किया जा सकता है. द रिजर्व बैंक गवर्नर एंड ओके, सो कंसेप्ट चेंज हो गया. यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक हमने देखा, आगे है लोकल बोर्ड्स. लेट अस सी द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसमें देखते हैं लोकल बोर्ड्स. अभी तक हमने सीबीडी देखा, दैट इज टॉप मैनेजमेंट देखा, 14 डायरेक्टर्स, गवर्नर, एग्जीक्यूटिव गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर. 14 डायरेक्टर्स का जो what do we call it, tenure है, वो tenure 4 years का है and eligible for renomination. गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर का जो tenure है that is 5 years and eligible for reappointment. अब देखते हैं local boards. The Reserve Bank governor and a maximum of 4 deputy governors
are also ex officio directors on the central board. ये देखो, ex officio क्या होता है? Ex officio means because somebody is holding an official authority or an official position. क्योंकि वो लोग गवर्नर है, अपने आप डायरेक्टर्स हो जाएंगे. क्योंकि वो डेप्यूटी गवर्नर है, ये अथॉरिटी के वजह से वो उस ऑफिस को होल्ड करते हैं, उस वजह से उन्हें डायरेक्टर की भी पोजीशन मिल जाती है. तो गवर्नर भी एक डायरेक्टर होता है और डेप्यूटी गवर्नर्स भी डायरेक्टर होते हैं. तो ये कितने हो गए देखो, एक गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर्स, ये हो गए 5, 4 लोकल बोर्ड्स 9, और टोटल और कितने बचे? 5, राइट. हाउ मेनी डायरेक्टर्स वेर देयर? 14 डायरेक्टर्स. तो और 5 डायरेक्टर्स है जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉमिनेशन मिलेगा. Reserve Bank also has 4 local boards constituted by central government, one each for west, east, northern and southern areas, which are located in Mumbai, Kolkata, New Delhi and Chennai. 4 अलग अलग रीजन्स के लिए, नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन एंड वेस्टर्न रीजन के लिए मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई, यहाँ पे उनके ब्रांच या रादर लोकल बोर्ड्स भी है. Each of these boards has 5 members appointed by central government and for a term of 4 years and thereafter until successor is appointed. हर बोर्ड में कितने होंगे? 5 मेंबर्स, और वो 5 मेंबर्स का टेन्योर कितने इयर्स का रहेगा? 4 साल का. और वो अपना ऑफिस पोजीशन कब तक होल्ड करेंगे? नया बंदा अपॉइंट होने तक होल्ड कर सकते हैं. रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है. The members of the local board shall elect from amongst themselves one person to be the chairman. ये जो 5 members है, इनमें से ही एक person को वो members खुद अपॉइंट करेंगे, elect करेंगे chairmanship के लिए. These boards represent territorial and economic interest of their respective areas and advise the central board on matters such as issues relating to local cooperative and indigenous banks. उनके एरिया में उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आर्थिक परिस्थिति से रिलेटेड जो जो इश्यूज रहेंगे, वो इश्यूज के ऊपर ये सेंट्रल बैंक, ये बोर्ड्स अपने इश्यूज को प्रेजेंट करती है और आगे एडवाइस करती है. They also perform other functions that central board में delegate to them. Central board को central board that is the central board of directors, CBD, जो हमने पिछले स्ट्रक्चर में देखा था. वो जो जो काम बताएंगे पास ऑन किए गए होंगे, हमने वहां पे देखा था ना. कहाँ देखा था हमने एकदम फर्स्ट स्लाइड पे देखा था कि सेंट्रल बोर्ड लोकल बोर्ड्स को कुछ काम डेलीगेट भी करती है. तो यहाँ हमें पढ़ना है कि सेंट्रल बोर्ड से आया हुआ डेलीगेट हुआ काम भी ये परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट, organizational structure is offices and branches. The Reserve Bank has a network of offices and branches through which it discharges its responsibilities. The units operating in 4 metros, that is Mumbai, Kolkata, Delhi and Chennai, are known as offices, while the units located in other cities and towns are called as branches. Currently, the Reserve Bank has its offices including branches at 27 locations. जो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में जो ऑफिसेस है उन्हें ऑफिसेस कहा जाएगा, और इसके अलावा सिटीज में है उसे ब्रांचेस कहा जाएगा. Offices and larger branches are headed by a senior officer of the rank of Chief General Manager designated as a regional director, while smaller branches are headed by a senior officer of the rank of General Manager. Senior officer is of the rank of Chief General Manager. जो larger branches है उनका head Chief General Manager होता है, और जो smaller branches है उनका head General Manager होता है. तो गाइज यहाँ हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ आरबीआई, फिर हमने देखा इनकॉर्पोरेशन ऑफ आरबीआई, एंड देन हमने देखा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीआई. कौन से डेजिग्नेशंस पे, कौन से ऑफिसेस में ये काम किए जाते हैं, या आरबीआई किस तरह से फंक्शन करता है. So this was part first of the RBI Act in
ECL's EBCL subject. And if you have any doubts regarding this part, I'll be glad to answer. I'll be glad to clarify. If you liked the video, if you have liked the contents in the video, please like and let us know the same in the comments box. If you have any doubts, you can type and ask the same in the comments box, and we'll be glad to clarify. We'll be glad to answer. Thank you.